So, good afternoon, everyone. So, we'll start with this topic today, that is the water softening. Still, we are in the module number 4, and we'll see this topic. Okay. So, in water softening, we'll have to see the lime soda and a base exchange method or the principal reactions which are required there. Then, a design considerations, if any, and sludge disposal of in water softening units. Okay. So, we'll see this one by one. So when we say removal of hardness, so immediately the question comes, what do you mean by hardness? So there are two kinds of hardness, that is temporary hardness and permanent hardness. So preliminary अगर मैं definition की बात करता हूँ, so primarily CA, the presence of a CA and Mg, in addition to this Fe, Mn and Al, if it is there, then we usually call it as a hardness. Okay. Now how is softening done? So there are two methods. One is known as a precipitation method. Another is known as a ion exchange method. So in precipitation method is for Ca and Mg, whereas ion exchange is also for Ca and Mg with ions such as Na. अगर आपका सिंपल सी एम जी है तो आप सॉफ्टनिंग प्रेसिपिटेशन के थ्रू कीजिए, और अगर सी एम जी के साथ में अगर दो और कुछ आयंस प्रेजेंट है तो उसके लिए आप क्या करो, आयन एक्सचेंज में जाइए. सो बेसिकली दिस इज द टू मेथड विच इज यूज्ड. ओके. तो आयन एक्सचेंज में फिर बहुत सारे आपके मेथड्स अवेलेबल आ जाते हैं, सो हम बाद में देखेंगे वो. सो वाई देयर इज अ नीड ऑफ बॉदरिंग अबाउट दिस हार्डनेस. ये हार्डनेस को हमें इतना ध्यान में क्यों रहना चाहिए, इसको हमें सॉफ्टनिंग क्यों करना चाहिए. द हार्डनेस सर सर स्क्रीन शेयर करो ना. स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा. नहीं. होल्ड 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 होल्ड. नो. Is it visible now? No, sir. No. मेरे से पहले कौन एंटर हुआ था? Is it visible now? Yes, sir. Okay. So we were in this topic, water softening. Today we'll see water softening. Okay. So these are the topics: lime soda and base exchange methods. Then what are the principal reactions which are involved in this? Then is there any design consideration that we'll see? And what is the matter of the sludge? What is the sludge disposable methods? So we'll see these points. Now, whenever we talk about the hardness, softening कहाँ use होता है? ये होता है आपका hardness remove करने के लिए. So the very first thing we need to understand what do you mean by hardness. So hardness की primary definition अगर हम बात करें, so whenever the presence of Ca and Mg is there, that is known as the hardness. Okay. So primarily Ca and Mg plus addition to this Fe, Mn and your Al, aluminium. ठीक है. अगर ये आयंस आपके साथ में प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज हार्डनेस. व्हेन वी से हार्डनेस, तो उसमें दो टाइप के हार्डनेस होते हैं. वन इज नोन एज अ टेम्पररी हार्डनेस, another is known as a permanent hardness. Okay. When we say only temporary hardness, so it's a matter of only of calcium and magnesium. लेकिन अगर हम permanent hardness की बात बोलते हैं तो उसमें carbonates भी add हो जाते हैं. ठीक है. So how is softening is done? This is done by two methods. One is known as a precipitation method. Another is known as a ion exchange method. When we say precipitation, तो उसमें क्या होगा? Simply आपका Ca और Mg, अगर आपके वाटर में सिंपली सी और एमजी प्रेजेंट है तो ही आप इसमें प्रेसिपिटेशन मेथड में जाइए, या अगर आपके सी एमजी के साथ में और कुछ भी एडिशन है
तो फिर आप बाद में जैसे Na अगर हम ऐड करते हैं, Na एंड उसके साथ में है, तो आपको फिर आयन एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। ओके, नो व्हाई इट इज बॉदरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसको इतना बॉदर करने का जरूरत क्या है? बिकॉज ऑफ हार्डनेस इन 300 to 500 mg per liter as CaCO3 range considered excessively high high soap consumption scaling in heating vessels and pipe। तो अगर 300 से 500 mg पर लीटर से ज्यादा होता है आपका CaCO3 आपके वाटर में, तो क्या होगा कि आपका जो सोप कंजप्शन है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसमें आपका जगह कोई वेसल अगर होगा उसमें, तो उसमें स्केलिंग फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके जो पाइप्स अगर हैं जो जिसको हम वाटर ट्रांसफर 1.2 अनदर करते हैं, तो ऐसे पाइप्स में भी, मेटल पाइप्स में भी आपके स्केलिंग फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। या अगर प्लास्टिक की बात करोगे तो प्लास्टिक पाइप्स में भी आपके स्केलिंग फॉर्मेशन ज्यादा होता है। But why it is happening? Just because of the presence of a 300 to 500 mg per liter of the CaCO3. Now, even if it is greater than 1000, even it is greater than 150 mg per liter, may result in a consumer objection। अगर आपका 150 mg पर लीटर से ज्यादा होता है तो भी वो ऑब्जेक्शनेबल है। 60 to 120 mg per liter as a CaCO3 is considered as a moderate amount। ये हम इतना जो बोलते हैं 60 से 120 mg per liter, दिस इज योर मॉडरेट अमाउंट। अगर 150 से भी ज्यादा है तो उसको ड्रिंकिंग पर्पज से आप यूज करो ही मत। ठीक है, ट्रीट करने के बाद भी उतना वो बराबर है आपका 60 to 120 इसमें नहीं आएगा, इसलिए उसको हमें इग्नोर कर लेना चाहिए। So the very first method is your lime soda process। तो लाइम सोडा प्रोसेस में फिर उसके और भी मतलब हम रिएक्शंस, जैसे हमने पीछे देखा था प्रिंसिपल रिएक्शंस की बात करें तो विल सी सम प्रिंसिपल रिएक्शन आल्सो। सो in this process all the soluble hardness causing impurities are converted into insoluble precipitates। I repeat, in this process all the soluble hardness causing impurities are converted in soluble से insoluble precipitate which may removed by a setting and the filtration। ठीक है, हम एक बार लाइम सोडा मिलाने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेसिपिटेट करेंगे या फिल्टर करके उसे हम रिमूव कर सकते हैं। soluble hardness causing impurities are converted into insoluble precipitates। मैं बार बार इसमें आपको फोकस कर रहा हूँ soluble से insoluble में। In this lime soda process, calculated amount of lime CaOH whole twice and soda Na2CO3। Lime is given by CaOH whole twice and soda is given by Na2CO3 is added in the hard water। This soluble calcium and magnesium salt in a water are converted into insoluble compounds। ठीक है, सॉल्ट्स कैसे होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं, राइट? तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्यूबल कंपाउंड सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच मे रिमूव बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन। जब वो सॉल्ट से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको आसानी से सेटलिंग करके उसे आप रिमूव कर सकते हो। सो वेरी बेसिक वन, द लाइम रिमूव्स द टेम्परेरी हार्डनेस। द बेसिक फॉर्मूला इज CaHCO3 whole twice, when you add a lime CaOH whole twice, it will be converted into CaCO3 which will be precipitate। ये जो आपको एरो दिख रहा है, this will indicate that this is a precipitation। ये आपका precipitation है। क्या रह जाएगा आपका? H2O आपका रह जाएगा, twice H2O रह जाएगा। यानी क्या होगा, वाटर आपका क्लीन होके वो सस्पेंशन में रह जाएगा और आपका जो ये जो है आपका क्या बोलेंगे, जो पोल्यूटेंट्स है वो आपके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो सॉल्ट्स है वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। सो सिमिलरली फॉर MgHCO3 होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ CaOH होल ट्वाइस, यानी हम लाइम इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो बनाएगा आपका MgOH होल ट्वाइस, अगेन दैट विल बी अ प्रेसिपिटेट वन, प्लस CaCO3 वो भी आपका प्रेसिपिटेट होगा एंड रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपका H2O रिमेनिंग रह जाएगा। So this is the very simplest way the lime remove the temporary hardness। Now the second one, lime remove the permanent magnesium hardness। Lime remove the permanent magnesium। आप देखो मैग्नीशियम हार्डनेस बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे MgCl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। MgCl2 आपका एक कंपाउंड है, इसमें आपने क्या किया, लाइम मिक्स किया और अब देखिए कि ये फॉर्मेशन हो रहा है MgOH होल ट्वाइस, और जो कि आपका सेटलेबल है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका CaCl2 रह जाएगा।
वो अलग कर लो उसको. Then second is MgSO4 plus CaOH whole twice. This will give you MgOH whole twice, that will be precipitate, and remaining will be what? CaSO4 whole, sorry, CaSO4 ये आपका अलग से हो जाएगा. यानी सस्पेंशन में CaCl2 रहेगा, सस्पेंशन में आपका CaSO4 रहेगा. प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है? MgOH whole twice, दोनों कंडीशन में. ठीक है, चाहे आप MgCl2 यूज करो या MgSO4 यूज करो, दोनों में इसमें वही हो रहा है, प्रेसिपिटेट. Now next is when lime remove the dissolved iron and aluminum salt. ठीक है, हमने जो पहले देखा हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम देखा. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रिगार्डिंग FeAnAl2, राइट. तो FeSO4 उसमें हमने लाइम ऐड किया, it will form FeOH whole twice. FeOH whole twice, it will be get precipitated. So what is remaining? CaSO4 आपका remain रहेगा. Now another one is Al2SO4 whole thrice. This will be thrice CaOH whole twice. So it will give you AlOH whole thrice, जो कि आपका precipitate होता है. Remaining क्या रहेगा आपका? CaSO4. So this is the lime remove the dissolved iron and aluminum salts. ठीक है. Now lime remove free mineral acids. I repeat, lime remove free mineral acid. Okay. For this, twice of HCl plus CaOH whole twice, यानी लाइम हमने ऐड किया, तो हमको ये क्या दे रहा है? CaCl2 plus H2O. ये फॉर्मेशन हो रहा है आपका CaCl2 plus H2O. दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट. ठीक है, ये जो CaCl2 है ये भी आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा. नाउ H2SO4 plus 3CaOH whole twice, अगेन लाइम हमने ऐड किया, अगेन इट विल फॉर्म CaSO4 whole twice, सॉरी CaSO4 plus H2O. Now lime remove dissolved CO2 and H2S. अगर आपके वाटर में CO2 मिक्स रहा और H2S मिक्स रहा तो उसकी वजह से भी आपका हार्डनेस आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लाइम का यूज कर सकते हैं. So which will be CaCO3 which will be precipitate and H2O will be remaining. And secondly, when H2S is mixed with this lime, so CaS will be precipitate and H2 will be remain same. Okay. So this is all about the lime. Lime में देखिए हमने 5 मेथड देख लिया हम लोगों ने, 5 तरीके से हमने इसको देख लिया. When we talk about soda, तो soda remove all calcium permanent hardness. So in this CaCl2 plus Na2CO3, यानी सोडा के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? Na2CO3. This will give you CaCO3 precipitate plus आपका क्या हो जाएगा? NaCl. ठीक है. Secondly, when CaSO4 plus your this soda, then this will give you CaCO3 precipitate and remaining will be Na2SO4. Okay. So this is a very basic जो आपके होते हैं इक्वेशंस होते हैं लाइम सोडा के. तो ऐसे 6 बेसिक लाइम सोडा के आपके इक्वेशंस है, प्रिंसिपल इक्वेशंस है, वो हमें याद कर लेना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ओके. लेट मी रिमाइंड यू, जो आपके फर्स्ट ईयर से आए होंगे तो या आपने मतलब डिप्लोमा वाले भी पढ़े होंगे अप्लाइड केमिस्ट्री में, माइंड में मुझे यहाँ तक याद है. तो इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स है, लाइम सोडा के ऊपर में सेम न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछने के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है. नाउ द 100, दिस इज वन बेसिक थिंग जो आप इसको अंडरस्टैंड कर लो, याद करके रख लो, एंड दैट इज दिस. नाउ द 100 parts of, sorry, now 100 parts by mass of CaCO3 are equivalent to, I repeat, 100 parts by mass of CaCO3 are equivalent to, number 1, 74 parts of CaOH whole twice, यानी लाइम के टर्म से बात कर रहे हैं, एंड 106 parts of the Na2CO3 NaM सोडा के टर्म से बात कर रहे हैं. तो उसी के लिए जो बेसिक टर्म यहाँ पे लिखा है दैट इज लाइम के टर्म्स में जब बात करें तो इट इज 74 part of CaOH whole twice. तो 74 डिवाइड बाय क्या था ये? 100 के लिए. ठीक है. तो 74 डिवाइड बाय 100. सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज अ टेम्परेरी Ca2 प्लस ट्वाइस ऑफ टेम्परेरी Mg2 प्लस परमानेंट Mg2 प्लस Fe2 प्लस Al3 प्लस CO2 प्लस H प्लस ब्रैकेट HCl और H2O जो भी आप यूज करोगे प्लस HCO3 माइनस. सो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको ये इक्विवेलेंट काउंट करने के लिए आपको ये बेसिक इक्वेशन जो है इसको फॉलो करना है. ओके, नथिंग एल्स. आपको यही फॉलो करना है, चाहे HCl यूज करो या H2SO4 हो, वो आपके ऊपर में, या क्वेश्चन में आपको कुछ दिया तो वो. नाउ सिमिलरली फॉर सोडा,
तो यहाँ पे 106 पार्ट्स फॉर Na2CO3 दिया इसलिए 106, और यहाँ पे 100 पार्ट्स ऑफ CuCO3 लिए तो इसलिए 100. नाउ इफ यू सी दिस, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परमानेंट, यहाँ पे था टेम्पररी टेम्पररी, ठीक है, यहाँ पे परमानेंट था. तो यहाँ पे स्टार्टिंग परमानेंट Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस प्लस Fe2 प्लस प्लस Al3 प्लस ब्रैकेट कंप्लीट प्लस CO2, ये एज इट इज जैसे दिख रहा है, प्लस ये H प्लस ये दिख रहा है. अब यहाँ पे आप HClO या H2SO4 जो भी आपका है वो है, माइनस HCO3, यहाँ पे प्लस HCO3 था, यहाँ पे माइनस HCO3. ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एक मिनट, मेरे ये काम नहीं कर रहा था क्या माउस? ओके, तो बेसिक डिफरेंस में मैं आपको बताने की कोशिश करता लाइम और सोडा में क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टर्म्स है, दिस इज ओनली डिफरेंट. बाकी ये जो नीचे के टर्म्स है सेम है, बस लाइम में यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है. ठीक है. सो इन लाइम सोडा प्रोसेस द वेरी टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस आर लाइक कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और दूसरा होता है आपका हॉट लाइम सोडा प्रोसेस. ऐसे आपके दो मेथड है, राइट. तो पहला देखेंगे हम लोग कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस. सो इसमें हम देखते हैं कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा आर मिक्स विद वाटर. It is mixed with the water at a room temperature. The precipitate formed are finely divided. Precipitate हमने उसको मिक्स कर दिया और वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा. Finely divided so they do not settle down easily. ठीक है. अब वो इतने माइन्यूट है, इतने बारीक है कि वो सॉल्ट्स पार्टिकल इतने माइन्यूट है कि वो सेटल नहीं हो रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, therefore it is essential to add a small amount of coagulants. तो इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ coagulants को ऐड करेंगे. तो कोएगुलेंट कौन से यूज करते हैं जनरली हम लोग, एलम यूज करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करेंगे, देन सोडियम एल्यूमिनेट हम यूज करेंगे. सो दीज आर द वेरी बेसिक वन, बेसिक कोएगुलेंट व्हिच हैव टू यूज. नाउ यूज ऑफ अ सोडियम एल्यूमिनेट एज अ कोएगुलेंट also helps to remove of a silica as well as of a present of a water. जो आपको सिलिका प्रेजेंट है उसको भी रिमूव करने में सक्षम रहेगा. सो लेट अस सी दिस द इक्वेशन. दिस इज NaAlO2 plus twice of H2O. This will give you NaOH plus AlOH whole thrice. Okay, I repeat, NaAlO2 plus 2H2O. This will give you NaOH plus AlOH whole thrice. So another equation is like, ठीक है, ये आपका बाद में प्रेसिपिटेट करेगा, AlOH whole thrice नहीं, आपका प्रेसिपिटेट करेगा. ठीक है. एंड NaOH यानी का मतलब है कि आपका जो वाटर है थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन रहेगा. नाउ सेकंड वन इज Al2SO4 होल थ्राइस, अगेन कंपाउंड, उसको हमने ऐड किया 3CaHCO3 होल थ्राइस. ठीक है, यानी किसके साथ हमने ऐड किया है इसको, हम किसके साथ उसको ऐड कर रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट. ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, AlOH होल थ्राइस. अगेन दिस विल बी गेट प्रेसिपिटेटेड CaSO4 होल थ्राइस और बाद में आपको प्लस दे देगा 6CO2. ठीक है. सो दिस इज योर कोल्ड लाइम प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस. सपोज करो कि एग्जाम में अगर पूछ लिया कि यू डिस्कस लाइम सोडा प्रोसेस, तो आपको ये दोनों मेथड उसमें आपको 5 मार्क में अगर आ गया तो आपको जो लाइम सोडा के मैंने आपको जो इक्वेशन दिखाया, दैट इज वेरी कंपलसरी, दैट इज मैंडेटरी, वो आपको नोट करना चाहिए. और साथ ही साथ अगर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस बोल दिया तो उसमें ये इक्वेशन आपके आने ही चाहिए, राइट. सो दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, फंक्शनल डायग्राम है एक्चुअली ये. तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. इफ यू सी दिस डायग्राम, सो यू कैन सी दिस इज अ केमिकल सोडा लाइम और कोएगुलेंट फीड, ये आपका फीडर है. नाउ दिस यू कैन सी, ये जो भी आपको दिख रहा है ब्लू में, so this is a wood fiber filters. okay, स्टरर आगे मैं दिखाता हूँ आपको. उसके बाद में ये है सॉफ्टनिंग वाटर, ये आपको बाहर आएगा. ये आउटलेट आपका वो हम बता रहे हैं. ये जो इनलेट है ये यहाँ से आएगा आपका हार्ड वाटर फीड. ठीक है. अब ये वर्क कैसे करता है, इफ यू सी दिस डायरेक्टली दिस, तो ये आप देखो एक एक ड्रॉप गिर रहा है और ये वाटर इसका राइज कर रहा है यहाँ पे, राइट.
और बाद में क्या हो रहा है कि हमने अपना एक स्टरर पैडल से उसको हमने स्टार्ट कर दिया, हमने एजिटेशन देना शुरू कर दिया। देन हमने क्या किया कि हमने केमिकल उसमें ऐड किया, whether it may be a soda, lime, or you can have any coagulant, whatever you want. So you can add a coagulant, जैसे ये हमने इसमें ऐड करते आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने ऐड किया। नाउ व्हाट विल हैपन, कोएगुलेंट एक बार ऐड करने के बाद क्या बनेगा, वो फ्लॉक्स प्रोड्यूस करेगा, बराबर है, वो क्या करेगा, वो फ्लॉक्स प्रोड्यूस करेगा। फ्लॉक्स एक बार प्रोड्यूस हो गया कि क्या वो हैवियर मास बन जाएगा, लाइक दिस, इट विल बी लाइक अ हैवियर मास। जब वो हैवियर मास बन जाएगा तो वो बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेटल हो जाएगा। नाउ दिस sediment particle, or you can say a sludge, you can remove it, and that can be in the form of CaCO3, or it may be in the form of MgOH whole twice, ठीक है। तो ये बाद में आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। फिर आपका जो क्लीन वाटर है, वो पार्टिकल यहाँ सेडिमेंट हो गया, सेटल हो गया, कि आपका जो क्लीन वाटर है दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस टॉप, आप इस टॉप से उसको बाहर में रिमूव कर लो, आपका जो वाटर बाहर आएगा, ये दिस इज योर सॉफ्ट वाटर। सो दिस इज अ वेरी बेसिक वन, a cold lime soda softener. Okay, so the another one is a hot lime soda process. So calculated quantity of a lime and soda are mixed with the water at 80 to 150 degree centigrade. अब देखिए बेसिकली इसको हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसका जो टेम्परेचर राइज कर रहा है दैट इज अबव 80 एंड इट गोज अप टू 150। सो दिस इज द रेंज टेम्परेचर, जिस वजह से हम इसको हॉट सोडा लाइम प्रोसेस कह रहे हैं। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाई टेम्परेचर, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो उसका कुछ तो एडवांटेज होगा। तो एडवांटेज इज लाइक दिस, द रिएक्शन प्रोसीड फास्टर। और जब भी हम थोड़ा सा एक टेम्परेचर में काम करते हैं तो उसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। हीट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज। अगर रिएक्शन आपका फास्ट होगा तो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी भी उसका बढ़ जाएगा। तो नो कोएगुलेंट नीडेड as the precipitate and sludge form settle down rapidly. So कोई भी नो कोएगुलेंट नीडेड। आपको जो हम प्रीवियस में कोएगुलेंट ऐड कर रहे थे तो उस कोएगुलेशन ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है, प्रेसिपिटेशन का भी आपको उतना जरूरत नहीं रहेगा। So much of the dissolved gases are driven out of the water, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे हम हीट करेंगे तो वेपराइज होगा, तो वो गैशियस फॉर्म में होके वो बाहर निकल जाएगा, राइट। So this is the benefit of this. So velocity of softener water is lower, so filtration of water become easier. तो क्या होता है कि यहाँ पे velocity of the softened water is lower, यहाँ पे क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, अगर हमको हीट रखना है तो हमें उस वाटर को कुछ टाइम के लिए वहाँ पे डिटेन करना पड़ेगा, और हमें वाटर को वहाँ कुछ देर डिटेन करना है। तो बट नेचुरल है कि हमें इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सो जो फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर बिकम क्वाइट इजी। So this process produce water of a comparatively low residual hardness 15 to 30 ppm. आपको जहाँ पे एकदम लो ppm, लो रेसिडुअल चाहिए आपका पार्टिकल्स का, तो उसी जगह पे ही हार्डनेस का, तो उसी जगह पे ही आप इसको यूज करो। अगर आपको इतने डिग्री तक के अगर नहीं चाहिए, then you can simply use a colder one. So if this is a typical diagram for the continuous hot lime soda process, where you can see this is your stand के ऊपर में आपका ये कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक रखा गया है, और इसमें आप देखिए इसका एक इनलेट है और ये दूसरा एक इनलेट है, एक तीसरा इनलेट है। यहाँ पे आपको 3 इनलेट दिखेंगे। तो एक इनलेट से आपको क्या होगा, रॉ वाटर हीटेड आएगा, रॉ वाटर फीड किया हुआ आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा स्प्रिंकल फॉर्म में। देन दिस इज सुपर हीटेड स्टीम। इस इनलेट पाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, ये स्टीम आपके वाटर ड्रॉपलेट के साथ में मिक्स हो जाएगा। नाउ इन साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केमिकल्स भी ऐड कर रहे हैं। केमिकल कहाँ ऐड कर रहे हैं, केमिकल हम ये वाटर में ऐड कर रहे हैं। केमिकल्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइम और सोडा, सो फीडिंग विल बी फ्रॉम दिस, ठीक है। तो दीज आर द इनलेट्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब यहाँ से सब ये मिक्स हो गया और यहाँ पे आके जो आपके सेडिमेंट पार्टिकल्स है, हाँ अब क्या होगा, ये वाटर जो यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इट विल बी गो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये ऊपर जाने के कारण वैसे ही उसका वेलोसिटी कम है, सब कुछ कम है, सो थोड़ा सा आपका सेडिमेंटिंग वहाँ पे जोन रेडी हो जाएगा।
तो सेडिमेंटिंग जोन रेडी होगा तो कुछ भी पार्टिकल्स आपके जो सेटल हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, यू कैन रिमूव दोस पार्टिकल फ्रॉम दिस. Okay, now whatever the water is going in up direction, so that will remove from this pipe, and this will come to this unit, whereas this unit is known as your filter. इसको हम बोलते हैं फिल्टर. तो आपका जो भी सॉफ्ट वाटर आ रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइन सैंड लेयर से पास करेंगे, देन हम कोस्ट लेयर से पास करेंगे, फिर हम उसे आपके ग्रेवल लेयर से पास करेंगे, देन वाटर विल बी फिल्टर्ड एंड देन इट विल बी गो आउट through this chamber, this outlet, that will known as a filtered softened water outlet. Okay, so this is a complete process for the continuous hot lime soda process. So it has some advantage, it has some disadvantage. So what are the advantages? The advantage is like it is a very economical, that is true. थोड़ा सा आपको ये है कि हीट लगेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा उसमें, but all over देखा जाए तो it's economical. If the process is combined with the sedimentation or coagulation, lesser amount of a coagulant shall be needed. अगर फिर भी आपको coagulant dose का required लगता है तो भी आपको very lesser amount of coagulant add करना पड़ेगा. The process increases the pH of the treated water, thereby corrosion is reduced. अभी जो प्रोसेस है उसमें आपका pH की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप इसको रिड्यूस corrosion को हम reduce कर सकते हैं. In addition to the removal of a hardness, the quantity of a mineral in the water are reduced. I repeat, in addition to the removal of hardness, the quantity of mineral in the water are reduced. आप जैसे हार्डनेस भी रिमूव कर रहे हैं तो उसमें साथ ही साथ आपके मिनरल्स भी वहां से रिड्यूस हो जाएंगे. ड्यू टू अल्कलाइन नेचर ऑफ treated water, amount of pathogenic bacteria in water is considerably reduced. ठीक है, अभी जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम जैसे भी हीट कर रहे हैं तो वैसे भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो ड्यू टू अल्कली नेचर ऑफ a treated water, amount of pathogenic bacteria in a water is considerably reduced. देखो आपको ध्यान में भी होगा, अगर कोई पैथोजेनिक चीजें रहती है तो उसमें हम जनरली हम थोड़ा सा लाइम अगर डाल देते हैं तो उससे वो कंट्रोल कर लेता है. तो सेम फंडामेंटल अल्कलाइन नेचर के कारण क्या होगा, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे. सो इट हैज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सो इट इज लाइक फॉर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सॉफ्टनिंग, केयरफुल ऑपरेशन एंड स्किल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. आपको इसको इकोनॉमी की मेंटेन करना है तो उसको एफिशिएंट आपको देना है, तो आपको क्या लगेगा, स्किल सुपरविजन लगेगा वहाँ पे. Now disposal of a large amount of sludge poses a problem. अब इसमें क्या है कि आपका जो स्लज फॉर्मेशन होने वाला है वो भी ज्यादा अमाउंट में होगा, तो that can be a problem. This can remove a hardness up to a 15 ppm, which is not good for the boilers. So lime soda was the first method. This is another method, that is ion exchange or deionization, or you can say demineralization. एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक नाम को यूज कर सकता है. आयन एक्सचेंज भी वही है, डीआयोनाइजेशन भी वही है, एंड डीमिनरलाइजेशन भी वही है. आपका कोई सिर्फ नाम का अंतर है, बाकी सब सेम है. एग्जाम में वो कुछ और नाम से भी पूछ सकता है आपको. सो आयन एक्सचेंज रेजिन आर वाइडली यूज्ड इन अ डिफरेंट सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड decontamination process. The most common example are water softening and water purification. Okay, I repeat. Ion exchange resin are widely used in the different separation, purification and decontamination process. The most common example are water softening and water purification. Ion exchange resin are, ये होता क्या है, हमने बोल तो दिया ion exchange resin, लेकिन होता क्या है? Ion exchange resins are insoluble, जो soluble नहीं होते हैं, which are cross-linked, have a long chain organic polymer with microporous structure, and the functional group attached to the chain are responsible for ion exchange properties. अब ये जो ग्रीन लाइन में, दो लाइन में हमने देखा, सारे कलरफुल में जितने वर्ड्स हम यूज करें, so you can see in this diagram. ठीक है, तो क्या बोलता है कि this is insoluble, तो insoluble है तो कुछ तो भी आकार तो होगा उसको. Okay, then it's a cross-linked, so you can check these are the cross links. ये ब्लू से आपको दिखेगा, these are the cross link.
नेक्स्ट इज अ लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर. सो दिस रेड से आप देख सकते हो, दिस इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर विद माइक्रोपोरस. तो माइक्रोपोरस में यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, बट इट हैज सम पोरस नेचर स्ट्रक्चर्स. और यू कैन ये बोलिए कि अगर इस कंप्लीट को एक स्ट्रक्चर बोलूंगा, तो ये जो इंटरलिंक चेन्स हैं इनके बीच में जो भी चीजें हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ पोरस नेचर. ओके. एंड द फंक्शनल ग्रुप, इट विल बी अंडर द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस उसमें रहेंगे. दैट विल बी नोन एज एन फंक्शनल ग्रुप. अटैच्ड टू अ चेन, attached to a chain, देखो ये attached to a chain are responsible for a ion exchange properties. यानी कि इसमें देखो प्लस माइनस रहेगा, which is attached to this polymer chain. Okay. जब हम cation exchange resin की बात करें, so this will be R minus dash HF plus, sorry H plus, R minus H plus, R minus H plus, ये थ्रू आउट द सरफेस में दिखेगा. ठीक है. रेजिन आफ्टर ट्रीटमेंट रहेगा. सी दिस इज बिफोर रेजिन बिफोर ट्रीटमेंट और दिस इज आफ्टर ट्रीटमेंट. हमने क्या किया इसमें, प्लस Na प्लस हमने कर दिया इसमें. और अब देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, आर एच जो है वो रिप्लेस कर देगा Na से. सो हियर यू कैन सी दिस विल बी R माइनस Na प्लस, R माइनस Na प्लस, R माइनस Na प्लस. यानी जो ये Na है, ये Na क्या करेगा, वो H के साथ में क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर दे रहा है. ये जो आपका Na है, ये Na प्लस जो है वो आपके इस H के साथ में क्या कर रहा है, उसे रिप्लेस कर दे रहा है. ये जब रिप्लेस करेगा, सो इट विल फॉर्म लाइक दिस R Na प्लस. ठीक है. और यहाँ पे प्लस 4, सॉरी यहाँ पे जो रहेगा प्लस 4H प्लस आपका वो एडिशनल उसमें ऐड हो जाएगा. सो लाइक दिस आयन एक्सचेंज कुछ इस तरह से काम करता है, एक को रिप्लेस करके दूसरा उसकी जगह ले लेगा. सो दैट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ द आयन एक्सचेंज. ओके. सो बेसिकली जैसे हमने बोला, पहले हमने जैसे पढ़ा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कटायन एक्सचेंज रेजिन और यहाँ दूसरा हम देखेंगे एनायन एक्सचेंज रेजिन. ठीक है. सो दिस डायग्राम इज फॉर योर कटायन एक्सचेंज रेजिन. दिस डायग्राम इज फॉर योर एनायन एक्सचेंज रेजिन. ओके. जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है उसने समझने की कोशिश करना है, जिसकी नहीं है मग अप इट और आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी भी केमिस्ट्री कुछ खास नहीं है, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बट थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि ये चेन कैसा होता है, कहाँ से क्या ब्लॉकिंग होता है, वो समझने की कोशिश करो. जैसे कि रेजिन कंटेनिंग एसिडिक फंक्शनिंग ग्रुप्स, रेजिन कंटेनिंग एसिडिक फंक्शनिंग ग्रुप, तो इसमें क्या है, COOH और SO3H. तो ये जो बोलते हैं ये कहाँ जा रहा है, ये दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस डायग्राम ओनली, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस डायग्राम ओनली. आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो, COOH यानी कहाँ से आ रहा है आपका, C दिख रहा है, H दिख रहा है, OOH नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे, हाँ, बट यहाँ पे देखो, ये मैं आपको यही दिखाने की कोशिश करता हूँ. आपका SO3H, यू कैन सी SO3H, यू कैन सी SO3H. ठीक है. ये एक आपको दिखेगा यहाँ पे, COOH तो दिख नहीं रहा, बट यस यहाँ पे आपको SO3H दिखेगा. नाउ जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं. जनरली दिस इज नोन एज अ बेंजीन. इसको जो पॉलीगॉन शेप होता है आपका, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी उसको समझेगा वो. हेलो हेलो, या मैडम, गुड आफ्टरनून, आई एम इन क्लास. हाँ हाँ. ओके. एनीवन एल्स फ्रॉम HOD साइड? Okay, all are others are coming, na? Okay. Okay, ma'am. Okay. Yeah, sure. Okay. Bye. Hey, Bhagwan. I'm sorry. So let's back again to topic. So this ये जो होता है ना आपका, जो आपको पॉलीगॉन शेप में दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ बेंजीन. तो नॉर्मली ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स है.
तो जैसे हम यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज अ स्टर्लिन डेविनली मेंजिन कोपॉलीमर। ठीक है, ये उसकी चेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कार्बन टू कार्बन उसका बॉन्डिंग होता है। सो आप देखो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग, यहाँ पे ये जो है ये सी और ये आपका दूसरा सी, दिस इज a कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग। ओके, या are capable of exchange of H plus ions with other cations। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स आपके, ये आपके सफिशिएंट है जो कि आपके H प्लस को आपको रिप्लेस एक्सचेंज देयर H प्लस आयंस विद देयर अदर कैटायन। H प्लस को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं with some other cations। okay, and with the other cations which comes in their contact known as a cation exchange resin, इसको हम बोलते हैं R plus RH plus। okay, and this copolymer which on a sulfonation and a carbon carboxylation become capable to exchange their hydrogen ion with the cations in the water। okay, so this is a one cation exchange resin। so this is another one जहाँ पे सेम फंडामेंटल है। यहाँ पे बस आपका Nr2 यहाँ पे यूज किया जाएगा, COOH की जगह पे हम क्या करेंगे, Nr2 यूज करेंगे। और यहाँ पे OH माइनस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, सो यू कैन सी दिस इज OH एंड दिस इज द OH विच इज यूजिंग ओवर हियर। ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, resin containing a basic function group are capable of exchanging their anions with the other anions which came in their contact known as anion exchange resins। okay, so if we talk about the process, the hard water is passed first through a cation exchange column which remove all the cations from it, and equivalent amount of hydrogen ions are released from this column to water। यानी कहने का मतलब जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमारा जो भी सेटअप रहेगा उसको कुछ कॉलम जब बोलते हैं तो कॉलम विल बी लाइक दिस। एक बीकर ले लीजिए जिसमें सब चीजें रहेगी और इसमें वाटर मिक्स रहेगा एंड सम अमाउंट ऑफ चीजें भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। हेलो, निकलता हूँ, आधे घंटा 15 मिनट में शुरू करते हैं, मैं क्लास में हूँ, बस खत्म करो भाषण। ठीक है, हाँ। सो जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल रिएक्शन, व्हाट आपको जो ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज दिस इक्वेशन 2RH plus plus Ca2 plus, this will give you R2Ca2 plus। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे थे कि H प्लस जो है उसको रिप्लेस कर देगा आपका आयंस। तो यहाँ पे H को कौन रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे H को आपका Ca2 आपका रिप्लेस कर दे रहा है। और ये क्या फॉर्म कर दे रहा है बाद में, इट इज फॉर्मिंग R2। ये एज इट इज आ गया R2, ये 2R था तो R2 हमने लिख दिया R2, लेकिन H की जगह पे क्या आ गया, Ca2 प्लस ने रिप्लेस कर दिया उसको। सो विल राइट एज R2Ca2 प्लस, और क्या रह गया आपका ट्वाइस ऑफ H प्लस। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है। सिमिलरली ये नेक्स्ट फॉर्मूला में ये Ca को रिप्लेस, सॉरी Ca ने H को रिप्लेस किया, वैसे यहाँ पे Mg जो रहेगा इस H प्लस को रिप्लेस करेगा एंड द इक्वेशन विल बी राइट R2Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस। ओके, सो दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल इक्वेशन जो हमें इसमें याद रखना चाहिए, सोडा आयन एक्सचेंज के इसमें हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा प्लेस है वो वर्कशॉप क्या को वर्कशॉप लास्ट ईयर हम लोग वर्कशॉप कंडक्ट किया था ना, अगस्त 3rd एंड डेट डाला नहीं है, डेट नहीं डाला, डेट मत डालिए, डेट डालना चाहिए। नाउ आफ्टर cation exchange column the hard water is passed through anion exchange resin column। ठीक है, anion exchange resin column
which remove all the anions from it, and equivalent amount of hydroxide ions are released from this column to water. Now दूसरा केस हम ले रहे हैं कि ये जो आपका ROH है माइनस प्लस HCl माइनस, अब इसमें भी क्या हो रहा है कि ये जो आपका Cl है दिस इज रिप्लेसिंग बाय दिस OH. ओके, तो क्या बना देगा, ये बनाएगा आपका RCl और ये OH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेपरेट. सिमिलरली अनदर इक्वेशन इज देयर ROH. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये SO4 से हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं इस OH को, एंड दिस विल फॉर्म R2SO4 2 माइनस एंड प्लस 2OH माइनस. ठीक है, देन फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली जब ये एक रिएक्शन होगा फिर ये दूसरा रिएक्शन होगा, तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमको H प्लस मिल जा रहा है और हमको OH माइनस भी मिल जा रहा है. तो इन दोनों के फॉर्मेशन से क्या बनता है आपका, वो होता है आपका H2O, यानी प्योर वाटर आपको मिल जाएगा. Thus water coming out from the exchange is free from cations as well as anions. एक में हमने क्या किया, एक में हमने cations के लिए वर्क किया, दूसरे में हमने anions के लिए वर्क किया. तो दोनों को जब हमने मिक्स किया, मतलब दोनों प्रोसेस के बाद में हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि आपका एक रिएक्शन में H प्लस आ रहा था और एक रिएक्शन में आपको OH माइनस आ रहा था. तो जब पूरा कंप्लीट आपका प्रोसेस खत्म होगा तो यू फाइनली यू विल गेट this H2O known as anions. Ion free water is known as a deionized or demineralized water. ठीक है, अगर मैं सिंपल सादी भाषा में अगर मैं बोलूं तो आप सब ने डिस्टिल वाटर तो सुना ही होगा. ठीक है, सिंपल सादा भाषा में बोल रहा हूँ, ये जो वाटर निकल रहा है क्या है, दिस इज योर डिस्टिल्ड वाटर, यानी दैट इज नोन एज डीआयोनाइज्ड वाटर. उसी को हम बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिसमें कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, जिसमें कोई मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसे को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर. सिंपली इफ आई से फॉर दिस, तो आप देखो एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपके दो लेयर्स है. ठीक है, और कॉम्बिनेशन बनाया गया, यहाँ पे लेयर्स के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं. whereas this is a Ca2 plus anions and here Na plus anions. ओके, तो यहाँ पे जो है आपका रेजिन, तो this shade shows the resin, this shows the activated sludge, activated exchange zone, and this shade shows the resin with the Ca2 plus R adsorbed. So here you can see there are only two combination. यहाँ पे आपका दिख रहा है ऊपर resin with Na plus R absorbed, और यहाँ पे आपको दिख रहा है this is the activated exchange zone. ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरा सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये तीनों का. ठीक है, फिर थर्ड में आपको देखो तो यहाँ पे भी आपको तीनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, लेकिन लेयर्स का डेप्थ अलग अलग दिया हुआ है इसमें. ठीक है, देन फाइनली इफ यू सी द फोर्थ वन, तो यहाँ पे भी यहाँ पे देखो ये अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग है, ये अलग है. यहाँ पे डेप्थ वेरिएशन में दिख रहा है कॉम्बिनेशन, और वेयर एज ये आपका कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट. इसमें क्या है, टॉप में आपको देखो एक्टिवेटेड एक्सचेंज जोन बोला है, और आपका बॉटम में है आपका रेजिन विद Ca2 प्लस. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वन, एंड अगेन यू कैन सी द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द फुल ट्रीटमेंट डायग्राम. सो आयन एक्सचेंज प्यूरिफायर और सॉफ्टनर यू कैन से. तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये आपके इंजेक्टर्स है जो ब्लिंक हो रहे हैं, दीज आर द इंजेक्टर्स. ओके, सो वाटर आपका क्या होगा, हाँ आपका जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर यहाँ से आया, स्प्रिंकल हुआ, स्प्रिंकल होके क्या हो गया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे देखो ये एसिड सॉल्यूशन फॉर द रिएजेंट. अब ये इंजेक्टर है, ये क्या होगा यहाँ से लेके आएगा और यहाँ पे स्प्रिंकल करेगा. तो ये जो भी स्प्रिंकलिंग है वो यहाँ पे मिक्स होगी, और यहाँ पे आपका कटायन एक्सचेंज रेजिन दिया गया है. ठीक है, जिससे आपका जो वेस्टेज ऑफ ए सिंक है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, और आपका जो वाटर है वो यहाँ से पंप आउट होके पंप के थ्रू इधर आ जाएगा. ये हो जाएगा आपका एक आपका जो एनायन प्रोसेस होगा यहाँ, सॉरी कटायन प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पे होगा. यानी यहाँ पे हमने H प्लस को डिफर, जो हमने यहाँ पे H प्लस को अलग निकाला था वो हो गया. देन सेकेंड थिंग, यही वाटर को हमने क्या किया, दोबारा रिसर्कुलेट किया यहाँ पे, और फिर से हमने यहाँ पे इंजेक्टर के थ्रू में यहाँ पे आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन के थ्रू हमने क्या किया, स्प्रिंकलिंग किया. Now this sprinkled water will be mixed with this sprinkle solution,
नाउ जो भी आपका बनेगा फॉर्म होगा वो आपका एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपके ग्रेवल बेड्स है, ये आपका ग्रेवल बेड्स है, फिल्टर भी होगा। देन वट एवर द सिंकिंग विल देयर, सिंकिंग वाटर विल बी देयर, वो यहाँ से इधर कलेक्ट हो जाएगा और बाद में आपका जो सॉफ्ट वाटर है वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सो हियर यू विल गेट द योर सॉफ्ट वाटर, राइट। So like this, this is the method of the ion exchange method. Okay. So here we have some region. हाँ, अभी ये जो है हमारे जो बेड्स हैं, ठीक है, कौन सा बेड, ये जो कटायन एक्सचेंज, ये जो आपका कटायन एक्सचेंज वाला बेड है, ठीक है, और ये जो आपका एनायन एक्सचेंज बेड है। अब एक टाइम आएगा जब ये पूरा फुल्ली मतलब फुल्ली कंज्यूम कर जाएगा, इसके बाद वो उसमें और फिल्ट्रेशन नहीं निकाल पाए, मतलब कुछ उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा। इन दैट केस उसकी कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू हैव टू रीजनरेट इट। आपके जो रेजिन्स है, इस रेजिन्स को आपको रीजनरेट करने की कोशिश करना पड़ेगा। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, cation exchange column is regenerated by passing a solution of a diluted HCl or diluted H2SO4। आप उसको रीजनरेट करोगे, कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ डायल्यूटेड HCl बोलो या डायल्यूटेड H2SO4, इसके थ्रू आप उसको रीजनरेट करोगे। मतलब उसमें आप ऐड करोगे वाटर, ये वाला वाटर इसमें ऐड करोगे। द रीजनरेशन कैन बी, आई एम सॉरी मैंने वाटर बोला, यू हैव टू ऐड दिस सॉल्यूशन फॉर द रीजनरेशन ऑफ दैट रेजिन। द रीजनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका कैसे रहेगा, twice of R2Ca2 plus 2H plus, now further it will give you 2RH plus Ca2 plus। अब देखो हमने जब रीजनरेशन किया H प्लस के साथ में, तो क्या बना के दे रहा है आपको, ये इसने क्या किया, इस Ca2 प्लस को रिप्लेस कर दिया, एंड इट विल बी ट्वाइस ऑफ RH प्लस Ca2 प्लस। हमने ये इक्वेशन पहले भी देखा है, कहाँ देखा है ये इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने ये इक्वेशन यहाँ देखा था, जो अभी इक्वेशन हमने बाहर देखा, द सेम इक्वेशन हमने यहाँ देखा था, ठीक है। ट्वाइस ऑफ RH प्लस प्लस Ca2 प्लस आपको ये दिया था। जब हमने रीजनरेशन किया है इसका, तो क्या होगा, आपको वापस से यही ओरिजिनल उसके कंपाउंड में लेके आ गया। क्या बना दिया उसने वापस से, ट्वाइस ऑफ RH प्लस Ca2 प्लस। So similarly, exhausted anion exchange column is regenerated by passing a solution of diluted NaOH, that is regeneration can be represented as। तो हमने क्या किया, उसको OH माइनस से दोबारा NaOH हमने इसको रीजनरेट किया, इसमें से जो OH है उसको रीजनरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। एंड फाइनली आपका जो ओरिजिनल फॉर्म में था, जो हमने ट्रीट करने के पहले जैसा था वैसा हम वापस आ जाएंगे, दैट इज द ट्वाइस ऑफ ROH प्लस SO4 2 माइनस। So this is the regeneration method, regeneration process. Now advantages, it has some advantages, it has some disadvantages. So advantages like can be used to soften highly acidic or alkaline waste, alkaline waters। हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ सॉफ्टन करने के लिए यूज कर सकते हैं, अगर वो हाईली एसिडिक होगा और हाईली अल्कलाइन होगा तो आप उसके लिए दिस इज द बेस्ट वन। इट प्रोड्यूसेस वाटर ऑफ ए वेरी लो हार्डनेस। आपका जो वाटर रहेगा उसका हार्डनेस वैल्यू बहुत कम रहेगा आपके आयन एक्सचेंज मेथड में, क्योंकि सारे मिनरल, सारे आयन, सारे सॉल्ट्स को वहां से रिमूव कर ले रहा है। तो नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस, द इक्विपमेंट इज कॉस्टली, जैसे ऑफ कोर्स रेजिन्स है उसमें तो कॉस्टली रहेगा। द एक्सपेंसिव केमिकल्स आर नीडेड, अब केमिकल्स को रीजनरेट करने के लिए आपको एक्सपेंसिव केमिकल्स भी रिक्वायर्ड रहेगा। देन आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इज रिड्यूस इफ वाटर कंटेंट टर्बिडिटी। सो उसका आउटपुट भी आपका मतलब रिड्यूस होने के चांसेस है अगर उसमें टर्बिडिटी रहेगी। और जब भी आप ट्रीट करोगे उसके पहले उसका टर्बिडिटी उसका 10 ppm से नीचे रहना चाहिए। 10 ppm से ज्यादा रहेगा सो दैट इज नॉट गुड। सो दिस इज अनदर मेथड, जियोलाइट आपका दूसरा और मेथड आ जाता है, वो हम कभी और देखेंगे। पर फॉर टुडे दिस मच इज सफिशिएंट। We have seen the lime soda process, we have seen the ion exchange method, okay, so this is all about for today's class. If anybody having any doubts, so you can remain here, and no doubts, and then they can leave by punching your roll numbers. Thank you so much.
अरे क्लिंटन, बादल, स्वीकार, निकलो यहाँ से जल्दी। हो गया क्लास? छह सेट। अरे 6 सेट का को बनाया? 6 सेट का को बनाया? 12 का 2 सेट और 16 का 4 सेट। सिलेबस सेम है ना? ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट मतलब अलग है क्या? एक मॉडल अलग है बस। हाँ फिर ठीक है, एक ही दिन में आ रहा होगा ना दोनों भी? एक ही दिन में आ रहा है, और फालतू में इतना सारा सेट देने का, उधर बच्चे भी नहीं 12 का। क्वेश्चन भी तो ज्यादा नहीं होंगे यार, हाँ? क्वेश्चन भी तो ज्यादा नहीं होंगे। है क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं।